एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूट्रिशन सजरा खान और इस पेज पे हम हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में अलग अलग टॉपिक्स को लेके आते हैं हर हफ्ते। तो अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग, देन दिस चैनल इज फॉर यू, सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग. In today's video, I'm going to be sharing with you a very detailed intermittent fasting approach that has worked for me and a lot of my clients who prefer intermittent fasting. Before we dive in, I would like to also tell you that intermittent fasting is not for everybody and it depends on the person. If they want to look at it as a lifestyle, only then I suggest it to them. Otherwise, it's okay. There are a lot of other ways to stay fit and healthy. पर अगर आप intermittent fasting के बारे में constantly कुछ read करते रहते हैं, research करते रहते हैं, तो ये 21 days का challenge आपको intermittent fasting की habits को डेवलप करने में मदद करेगा. I'm going to be dividing this video into 3 parts and we'll start with intermittent fasting phase 1, we'll go to phase 2 and then finally phase 3 and after that you can analyze and decide for yourself कि intermittent fasting है आपके लिए या नहीं. मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक को क्लिक करिए और मेरे प्रोग्राम में एनरोल करके आप एक एक्सपर्ट के साथ यानी मेरे साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं ताकि आप प्रॉपर्ली गाइडेड रहे और कोई मिस्टेक ना करें अपनी हेल्थ को लेकर. इंटरमिटेंट फास्टिंग एज द नेम सजेस्ट इज a time interval in which you have to fast and then there is a time interval in which you don't have to fast. Now why is it helpful? It is beneficial in cell autophagy. Cell autophagy मतलब regeneration of the cells. तो अगर आपको एक healthier skin, एक healthy body and healthy immune system चाहिए तो intermittent fasting might help. Now it is not for everybody and not everybody is going to benefit from it. Like any diet plan also is not for everybody and not everybody is going to benefit from a particular diet plan. Customization is very important. So just analyze your body, think about whether you can stay for this many hours without food and if the answer is yes, if it does not make your body uncomfortable, then let's start with phase 1. phase 1 में आपको अपने दिन को 2 हिस्सों में बांटना है 12:12 का. ये जो मेथड है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे क्लाइंट्स में, क्योंकि जब भी मेरा कोई भी क्लाइंट मुझे आके बोलता है कि उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करना है, मैं उनको इन्हीं 3 फेजेस के थ्रू लेके जाती हूँ. Also, I am someone who has been doing intermittent fasting since 7 years. It has not affected my periods. It has not affected my mood. In fact, my periods have been all the more regular without pain. But this is my story. अगर मैं बात करूँ मेरे clients की, मैंने on an average 400 प्लस लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंट्रोड्यूस करके उनको फॉलो कराया है. मेरा क्लाइंटेल 4000 से भी ज्यादा का है और उसमें से सिर्फ 400 लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग पसंद आया है. That says a lot about what I said earlier that it is not for everybody. पर अगर आपको सारे डिस्क्लेमर ध्यान में रखते हुए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करनी है तो फेज 1 आपके लिए है. डिवाइड योर डे इनटू 2 हाफ्स 12:12. 12 घंटे में आप खाएंगे जो भी आपका डाइट है उसी को एज इट इज एंड 12 घंटे आप कुछ नहीं खाएंगे. जब मैं बोलती हूँ कुछ नहीं खाना है तो आपको कुछ नहीं खाना है. यू आर नॉट गोइंग टू इवन टेक 1 बादाम बिकॉज इट इज जस्ट 20 कैलोरीज एंड फास्टिंग में अक्सर काफी आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर में ये मेंशन रहता है कि आप अंडर 20 कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं. लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि वो 20 कैलोरीज आप लिक्विड से ले. इट कैन बी ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, it can be black tea also if that is what you like. And in some rare cases, like for me, I drink coconut water as well because I don't drink black coffee, I don't drink any black tea in the morning, so I drink coconut water. That is something that I would not recommend to everybody who is fasting. I do have a lenient way of intermittent fasting and it works for me. So start करते हैं हम अपने दिन को 12:12 के रेशियो से and इसको हमें 7 दिन तक फॉलो करना है. इन 7 दिनों में आप एक डायरी में मेंटेन करेंगे कि आपको कोई हेडेक तो नहीं हो रहा है, आपका बाउल मूवमेंट कैसा है, आपका गट हेल्दी है या नहीं. और अगर इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस का आंसर नो निकल के आता है, यू हैव टू स्टॉप देन एंड देयर. अगर इन तीनों का आंसर यस है तो हम 8वें दिन से नेक्स्ट फेज स्टार्ट करेंगे विच इज गोइंग टू बी 14:10 का रेशियो, जहां पे 14 आवर्स विल बी योर फास्टिंग विंडो एंड 10 आवर्स इज गोइंग टू बी योर फीडिंग विंडो. अब उस फीडिंग विंडो में आप वही जो फर्स्ट वीक में अपना डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे आप वही फॉलो करेंगे, बट बाकी के 14 घंटे आप सिर्फ नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर ठंडा गर्म जो भी आपको लेना है लीजिए. ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी. अगर आप थायराइड की दवाई लेते हैं तो थायराइड की दवाई ले सकते हैं दोनों ही फेजेस में. एंड दैट्स अबाउट इट. And you have to again answer those 3 questions. Is it making you uncomfortable? Are you constantly thinking about your food? Is it making you constipated? And कोई headache तो नहीं है. अगर आपको ये चारों 3 सवाल मैंने बोला था, I'm sorry, अगर आपको ये चारों सवाल नो है तो कंटिन्यू टू द नेक्स्ट फेज. पर
इनमें से कोई भी 2 सवाल का अगर आपका जवाब यस है, stop then and there. You can continue 12:12 का ratio, but you shouldn't follow 14:10 का ratio. Yes, I'm serious about it. It is that serious. Health is always very crucial. अगर आप weighing scale पे अपना weight drop भी कर रहे हैं at the cost of your health, I don't think it is worth it. And इसीलिए एक guided program जो मैंने 4 weeks intermittent fasting का बनाया है, वो बहुत helpful होगा उन लोगों के लिए who want to invest their time, energy and money in it, of course. And guided program का link नीचे दिए गए description के पहले link में या इस I button पे है. If you are comfortable with 14 hours of fasting for the next 7 days, we have to start the phase 3 of intermittent fasting, and there you have to again introduce a 2-hour extended fasting window and अपने फीडिंग विंडो को 2 घंटे और आपको कम कर देना है। इसका मतलब ये है कि फाइनली आप 16:8 के रेशियो में आ गए, जहाँ 8 घंटे में आपको अपना पूरा दिन का जो मील कंजम्पशन है वो करना है और 16 घंटे की फास्टिंग करनी है। 16 घंटे की फास्टिंग में आई वुड रिकमेंड कि आप कोकोनट वाटर लेना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट 2 फेजेस तक अगर आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं तो आई डोंट रिकमेंड कोकोनट वाटर। इट इज नॉट बैड, यू कैन, बट 16 घंटे में आई डू रिकमेंड स्ट्रॉन्गली कि आप कोकोनट वाटर ले लीजिए जरूर। और उसके साथ साथ अगेन टी, कॉफी ब्लैक होनी चाहिए, कोई भी चीनी या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं ऐड होना चाहिए। थायरोनॉम की अगर दवा ले रहे हैं आप तो फास्टिंग विंडो में ले सकते हैं एंड देन कंटिन्यू विद योर डे। सो दीज आर द 3 फेजेस। इन जो थर्ड फेज होगा आपका वो डे 21 तक चलेगा। सो 15 से 21st डे तक आपका थर्ड फेज चलेगा। इन तीनों फेजेस में ही आपको वो चारों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और अगर आप कहीं पे भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अगर आपको कॉन्स्टेंटली हेडेक और डिजीनेस लग रही है, अगर आप लो ऑन एनर्जी फील कर रहे हैं, अगर आपको काम करने का मन नहीं कर रहा और पूरे दिन आप सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पे लेटे रहने का मन कर रहा है, हर वक्त घड़ी देख रहे हैं कि कब फास्टिंग विंडो खत्म होगी हमारी, एंड कॉन्स्टेंटली यू आर ऑक्यूपाइड विद द थॉट्स ऑफ ब्रेकिंग योर फास्ट, दिस इज नॉट फॉर यू। देन आई वुड एडवाइस, अगर फिर भी अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का मन करता है, आई वुड एडवाइस स्टिक टू 12 और 14 आवर्स व्हाटएवर इज कंफर्टेबल फॉर अ एलोंगेटेड टाइम। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते, आराम से जब तक आप सोचने बंद नहीं कर देते खाने का, एंड देन फाइनली स्टार्ट वर्किंग ऑन अ 16:8 का रेशियो। दिस इज हाउ सिंपली आई इंट्रोड्यूस intermittent fasting in my clients' life, slowly and gradually. Don't jump to a 16 hours fast just because you watched some video which says that there are tremendous benefits. मैं 7 साल से 14:10 का रेशियो फॉलो कर रही हूँ। Some days it is 16, some days it is 12 also, but most days I have a fasting window of 14 hours and it has worked for me. I have never been constipated, I have never been low on energy. It has never affected my period cycle also. But if you are suffering from effect, अगर आपको पीरियड साइकिल में कोई भी चेंज या शिफ्ट दिखता है विद इंट्रोड्यूसिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, स्टॉप इट देन एंड देयर एंड सी क्या वो शिफ्ट अभी भी लग रहा है आपको, तो शायद इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से वो नहीं था। जो आपको 4 इमीडिएट रिजल्ट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग से मिलेंगे वो ये है कि आपको बहुत लाइट फील होगा आपकी बॉडी का। सेकेंड, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा, आपकी बेली एरिया से सबसे ज्यादा आपको फर्क दिखना स्टार्ट होगा इनिशियली। थर्ड इज अगेन सेल ऑटोफेजी, सो आपकी हेयर एंड स्किन की अपीयरेंस बहुत अच्छी होने लगेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड फोर्थ इज, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो। I am not going to recommend intermittent fasting to people who are diabetic, type 1 diabetes, type 2 diabetes. अगर आप pre-diabetic हैं, then it can help in lowering your insulin resistance definitely. If you have PCOD, you can do it. If you have thyroid, you can do it. Only and only if you think you can. जरूरी नहीं है, as I have already done. मैंने 10 बार आपको already बोल दिया है, but फिर भी मैं आपको recommend करूँगी because it is my duty as a nutritionist to inform you. It is not compulsory for you to do intermittent fasting or any diet as of that. For that matter, to lose weight, you can lose weight with a healthy lifestyle, which can be built by you depending on what fits your schedule. All right. Then I come to the end of this short and sweet video. Intermittent fasting से related कोई भी अगर आपको doubts है, मुझे comments में लिखिए. I am going to respond to those doubts and I am going to take care of it. I hope this video helped you in making an informed choice about your lifestyle. अगर इस वीडियो ने आपको मदद की in some way or the other, please give it a big fat thumbs up. Subscribe to my channel. Hit the notification bell as well so that whenever I post a video, you get notified. So until next time, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.